کربلا کے جلتے ریگستان میں جہاں سورج کی تپش حد سے گزر چکی تھی اور فرات کا پانی بس نظروں کے سامنے تھا، ایک ایسی داستان لکھی گئی جو صدیوں تک دلوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ سوچئے، صرف 70 جانباز جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے ایک ایسی فوج کے سامنے کھڑے تھے جو یزید کے حکم پر عمرو بن سعد کی قیادت میں 1000 سے بڑھ کر 3000 ہو چکی تھی۔ اس دردناک میدان کے مرکز میں تھے امام حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ان کے وفادار بھائی حضرت عباس، جن کی بہادری دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتی تھی۔ غداری کے سائے، پیاس کی شدت اور بی بی سکینہ جیسی معصوم بچیوں کے پانی کے لیے بھلکتے چہرے، پھر بھی یہ خاندان ظلم کے آگے جھکنے کو تیار نہ تھا۔ یہ ہے کربلا کی وہ کہانی جو صرف جنگ نہیں بلکہ ایمان، وفا اور قربانی کا امر پیغام ہے۔ تو چلیے اس دردناک سفر پر چلتے ہیں جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نے اسلامی تاریخ کے سب سے روشن اور غمگین صفحے لکھے۔ مدینہ کی گلیوں میں 4 ہجری میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو نبی کے دل کے نور تھے۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ حسین نبی کے گھر کا سکون تھے۔ نبی نے فرمایا، میں تمہارے لیے قرآن اور اہل البیت چھوڑ رہا ہوں، انہیں پکڑو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک بار خطبہ دیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیے، لیکن یہ سکون زیادہ نہ رہا۔ حسین جب 7 سال کے تھے، نبی اور 6 مہینے بعد ان کی والدہ وفات پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے 3 خلفاء کے دور میں امت نے کافی ترقی کی، لیکن حضرت علی کے وقت فتنے اٹھنا شروع ہو گئے۔ جنگ جمال اور جنگ صفین نے ہزاروں کو شہید کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے علی کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کیا، لیکن اکثر دھوکہ کیا۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پہلے خلفاء کے دور میں یہ فتنہ کیوں نہیں اٹھا؟ علی نے جواب دیا، ان کے پاس ہم جیسے لوگ تھے، لیکن میرے پاس تم جیسے لوگ ہیں۔ علی کی شہادت کے بعد حسن نے 6 مہینے خلافت کی، لیکن کوفہ کے لوگوں کی نافرمانی نے انہیں معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب معاویہ نے اپنی موت سے پہلے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے صلح کو توڑتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، تو انہوں نے یزید کو چیتاونی دی، حسین سے ہوشیار رہنا، اگر وہ تیرے خلاف اٹھا تو نہیں بچے گا۔ یزید ایک شرابی اور ظالم شخص تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ امام حسین کی بیعت لینا سب سے ضروری ہے، کیونکہ اگر حسین بیعت کر لیں گے تو باقی سب بھی اس کے آگے جھک جائیں گے۔ یزید نے اپنے گورنرز کو حکم دیا کہ تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لی جائے۔ اس کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کر زبردستی بیعت لینا شروع کر دیا۔ اسی دوران مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں چپکے سے بلایا اور یزید کی بیعت کا حکم دیا، لیکن امام حسین نے صاف صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں یزید جیسے ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی رات اپنی فیملی کے ساتھ وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں کئی مہینوں تک رہنے کے دوران کوفہ کے لوگوں نے انہیں خط بھیجے، کہنے لگے، آپ ہی ہمارے امام ہیں، آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو کوفے کی حالت جانچنے کے لیے بھیجا۔ کوفے پہنچے مسلم بن عقیل کا لوگوں نے دل کھول کر سواگت کیا اور 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کا وعدہ کیا۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے ترنت کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو نیا گورنر بنا دیا تاکہ وہ اس موومنٹ کو روک سکے۔ عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی سے رات کے اندھیرے میں امام حسین جیسا لباس پہن کر اور منہ چھپا کر کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سوچا کہ امام حسین آئے ہیں اور خوشی میں ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ اندھیرے کی وجہ سے کسی کو سچائی کا پتہ نہ چلا۔
उबैदुल्ला महल में पहुंचा और अगले दिन अपनी असलियत जाहिर कर दी। धमकी दी कि जो हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम बुरा होगा। उसने मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर महल की छत से फेंक कर शहीद कर दिया और इमाम हुसैन के समर्थकों को या तो कत्ल किया या जेल में डाल दिया। इस वक्त इमाम हुसैन मक्का में थे, जहां हज के मौके पर हजारों लोग उनके साथ जुड़ने का वादा कर रहे थे। जब यजीद को ये पता चला, उसने अपने जासूस इहराम के लिबास में भेजकर इमाम हुसैन को शहीद करने की साजिश रचाई। ये खबर सुनते ही इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने एक खुतबा दिया, जो मेरा साथ देगा वो शहीद होगा और जो पीछे रह जाएगा वो कभी उस अजीम कामयाबी को नहीं पा सकेगा। इसके बाद वो अपने छोटे से काफिले के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गए, ये जाने बिना कि कूफा अब उबैदुल्ला बिन जियाद के कब्जे में था। कई साथियों ने उन्हें कूफा ना जाने की सलाह दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने 70 से 80 लोगों के काफिले के साथ, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कूफा की तरफ बढ़ने लगे। वो किसी जंग के लिए नहीं बल्कि कूफे के लोगों से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर भी मिली, जिसने कई साथियों का हौसला तोड़ दिया। कुछ लोग वापस लौटने लगे, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अल्लाह से आए हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। ये सफर मुझे पूरा करना है। इसके बाद काफिला फिर से कूफा की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में एक रात जब इमाम हुसैन सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने फरमाया, ए हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। ये ख्वाब सुनाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, जो वापस जाना चाहते हैं चले जाएं, क्योंकि अब मेरे साथ रहने वाला शहीद होगा। कुछ लोग छोड़ गए, लेकिन वफादार साथी उनके साथ रहे। रास्ते में उनकी मुलाकात जुहैर बिन कैन के काफिले से हुई। जुहैर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा, मैं अब इमाम हुसैन के साथ अपनी जान दूंगा। यजीद को जब पता चला कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसने हुर बिन यजीद को 1000 सिपाहियों के साथ भेजा। हुर ने इमाम हुसैन के काफिले को दरियाए फुरात के किनारे करबला के रेगिस्तान में रोक लिया। जब इमाम हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है, तो जवाब मिला, ये करबला है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। उन्होंने हुक्म दिया, यहीं खेमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंगे सिफ़ीन से वापसी के दौरान रुक कर फरमाया था, ए हुसैन, उस दिन सब्र करना जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए ना होगा। करबला में तुझे अकेले मौत का सामना करना होगा। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन के साथियों ने करबला में खेमे लगा लिए। इसी वक्त यजीद ने अम्र बिन साद को हुर की फौज के साथ जोड़ने भेजा। इस तरह यजीद की फौज 1000 से बढ़कर 3000 हो गई, जबकि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 70 लोग थे, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। अम्र बिन साद इतनी बड़ी फौज क्यों मंगवा रहा था? इसकी वजह थी हजरत अब्बास, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन के भाई। अब्बास की बहादुरी ऐसी थी कि जब वो लड़ते तो लगता जैसे इमाम अली खुद मैदान में है। इमाम अली ने तहज्जुद में दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा दे जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में उसके साथ खड़ा हो। अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया, जिसकी वजह से यजीद की फौज खौफजदा थी। इमाम हुसैन ने कूफे के लोगों को अपनी हालत बताने के लिए खत लिखा, लेकिन वो खत कभी पहुंच ही ना सका। उनका काफिला शदीद प्यास से जूझ रहा था, क्योंकि अम्र बिन साद ने फुरात के किनारे 500 सिपाही खड़े कर दिए थे। रेगिस्तान की गर्मी, सूरज की तपिश और बच्चों के सूखे होंठ, प्यास की वजह से औरतें बेहोश हो रही थी। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहले से बीमार थे। बीबी सकीना बार बार पूछ रही थी, बाबा पानी कहाँ है? इमाम हुसैन ने दुश्मनों को पैगाम भेजा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को पानी दे दो। लेकिन जवाब मिला कि उबैदुल्ला बिन जियाद ने एक बूंद पानी देने से भी मना किया है।
8 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अम्र बिन साद से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी, यजीद की बैत। इमाम हुसैन इसके लिए कभी राजी ना हुए। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, खून गाढ़ा हो रहा था और बच्चों में ये असर और भी शदीद था। 9 मुहर्रम भी इसी आजमाइश में गुजर गया। इमाम हुसैन ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए, तुम अब जा सकते हो। उन्होंने चिराग बुझा दिए, लेकिन जब रोशनी जलाई तो एक भी साथी उन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद, जो इमाम हुसैन की इज्जत करता था, ने अम्र बिन साद के खिलाफ बगावत करके इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली। 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन यजीद की फौज के सामने आए और पुकारे, ऐ लोगों, देखो मैं कौन हूं। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या सिर्फ इसलिए मुझे कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत से इनकार किया? दुश्मन खामोश रहे। इमाम हुसैन ने अपनी छोटी सी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक राइट, एक लेफ्ट और एक सेंटर में, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे। यजीद की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फजर की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके शहीद होते चले गए। जब साथी कम हुए तो इमाम हुसैन के बेटे जनाबे अली अकबर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, मैदान में आए। उन्होंने पुकारा, मैं हूं अली, हुसैन का बेटा। हम नबी के घराने वाले हैं और अल्लाह की कसम, हम बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। यजीद की फौज उनके चेहरे को देखकर सन्नाटी छा गई। कई ने नजरें झुका ली क्योंकि उनका चेहरा नबी जैसा दिखता था। अली अकबर ने दुश्मनों को एक के बाद एक खत्म किया, लेकिन दूर से किसी ने उनके सीने में नेजा मारा। वो गिर पड़े और इमाम हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन तेजी से उनके पास पहुंचे, उन्हें उठाया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रह, इन्होंने उस शख्स को भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से मिलता था। इसके बाद इमाम हसन के बेटे जनाबे कासिम ने जंग की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम, तुम अपने बाप की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? कासिम ने जवाब दिया, चचा जान, आपके लिए मौत भी शहद से मीठी है। वो मैदान में उतरे, बहादुरी से लड़े, लेकिन पीछे से हमले में शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने उनका जिस्म उठाया और 2 भतीजे भी शहीद हुए। हजरत अब्बास जब बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने पानी लाने की इजाजत मांगी। वो घोड़े पर सवार होकर फुरात की तरफ बढ़े। दुश्मनों को चीरते हुए दरिया पर पहुंचे। उन्होंने पानी लिया, लेकिन जब याद आया कि खानदान प्यासा है तो पानी गिरा दिया। मशकीज़े में पानी भरकर वापस लौटने लगे, लेकिन दुश्मनों ने उनका एक बाजू काट दिया। दूसरे हाथ से मशकीज़े पकड़ी, लेकिन वो भी काट दिया गया। उन्होंने मुंह में मशकीज़े पकड़ी, लेकिन तीरों ने उन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन उनके पास पहुंचे और अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ करना, मैं पानी ना ला सका। वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को उठाया और दुश्मनों से कहा, मेरे लिए ना सही, इस मासूम के लिए पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने अली असगर के गले में तीर मारा और वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने उनका खून ऊपर उछाला और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को याद रखना। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। उनका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। प्यास की शिद्दत से एक आम इंसान हिल भी नहीं सकता, लेकिन वो डट कर दुश्मनों के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी फैमिली से अलविदा लिया और कूफा के लोगों को आखिरी खत लिखा, तुमने मुझे बुलाया था लेकिन अपने वादे से मुकर गए। अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। जुलजना पर सवार, जुल्फिकार हाथ में लिए वो मैदान में उतरे। हजारों के लश्कर के सामने अकेला शेर था। वो तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़े।
तलवार से उन्हें चीरते हुए दुश्मनों की गर्दनें हवा में उड़ रही थी। कई सिपाही हैरान थे, कहते हमने कभी किसी को इस प्यास और जख्मी हालत में ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। अम्र बिन साद ने देखा तो हुक्म दिया, चारों तरफ से हमला करो, दूर से तीर बरसाओ। हजारों तीरों ने इमाम हुसैन को घेर लिया। उनका जिस्म तीरों से भर गया। वो जलजना से गिरे और सजदे की हालत में शहीद हो गए। शिम्र ने इमाम हुसैन के सीने पर अपने नापाक पांव रखे और उनके सर को तन से जुदा कर दिया। उनके खेमों को लूटा गया, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक ऐसा इनकलाब उठा जो आज तक जिंदा है। कूफे के लोगों ने उनकी कब्र पर आकर कसम खाई कि वो यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने जंग की और शहीद हुए। मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यजीद की बैत से इनकार किया और हजारों मुसलमान शहीद हुए। मदीना के लोगों ने भी यजीद के खिलाफ बगावत की और हजारों शहीद हुए। सदियों बाद अब्बासी खिलाफत ने उमैया हुकूमत को ख़त्म किया। इस दर्दनाक और रोशन सफ़र को मेरे साथ याद करने के लिए शुक्रिया। करबला की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक सबक है, हक के लिए लड़ने का, वफा का और कुर्बानी का सबक। इमाम हुसैन के जज्बे को अपने दिलों में जिंदा रखें और उनके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आपको करबला की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा छू गया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।